Hello students, welcome back to my YouTube channel Success Point. Today we are going to learn operations on rational number. Students, let's start practice set 22. These are the questions I had written before. Let's see how to do it. Question number 1, 5 upon 36 plus 6 upon 42. Here what we can do, we can eliminate, we can reduce the denominator and numerator, and we can solve it. Like if I will reduce it like this, 6 ones are 6, 6 sevens are 42. Then also we can do it, or else directly we can solve. 5 upon 36 plus 1 upon 7. So what we are going to do here, students, we are going to cross multiply. 5 multiply by 7 plus 36 multiply by 1, or 1 multiply by 36 is the same, upon 36 into 7. Okay, so what we will get, 5 sevens are 35 plus 36 are 36 upon 7 6 are 42, 7 3s are 21, 21 plus 4 is 25. So we will add these two numbers and we will get 6 plus 5 is 11, carry 1, 3 plus 3 is 6, 1, 7, 71 upon 252 is the answer. Here we will put equal to as we are solving. Students, if we will not reduce this, then also we will get the answer. We should not reduce if it is not cutting. If you can see here, 5 upon 36 is not reducing, so that's why we have not cut it. See here, what we need to do here in next question. Here we need to multiply 1 multiply by 3, then add 2, this is mixed fraction, upon 3, plus 2 multiply by 5, it is the same, 2 multiply by 5 plus 4 upon 5. Now I will get 1 3s are 3 plus 2, 5 upon 3 plus 2 5s are 10, 10 plus 4, 14 upon 5. It is not getting cut, so we are going to cross multiply. 5 multiply by 5 plus 14 multiply by 3 and upon 3 multiply by 5. 5 5s are 25 plus 14 3s are 42 upon 15. 25 plus 42 is 67. We can directly add 2 plus 5 is 7, 4 plus 2 is 6 upon 15. This is our answer. Students, are you getting me? I hope it is easy for you people to manage the question. That is really easy. This is mixed fraction. We have done it. Now here 11 upon 11 will multiply by 19. It is the same kind of question, upon 17 plus 13 multiply by 17 upon 19. Oh, so sorry. Students, sorry. I can take directly, or let me write like this only. Multiply by 19 and 17 multiply by 19. So that we can do LCM. Now I am doing in different way, the same thing in different way. We can solve like that also. 19, 11 9s are 99, carry 9, 11 ones are 11 plus 9 is 20, we got 209 plus 13 sevens are 91, carry 9, 13 ones are 13, 13 plus 9 is 22, 13 plus 9 is 22 upon the common directly I am taking. Now we can multiply. If you want, I can multiply for you. Let me do it with yellow chalk so that you can understand. 19 multiply by 17. 7 9s are 63, carry 6, 7 ones are 7 plus 6, 13, 1 9s are 9, 1 ones are 1. These two numbers should be added. 3, 2, carry 1, 3. 323 will be our answer here. 3, 2, 3. Now these two numbers we are going to add. 1 plus 9 is 10.
carry 1, 2 plus 1 3, 2 plus 2 4, 430 upon 323. I hope this is easy, students. As you people are getting this, these numbers cannot be cancelled. I think 43, 4 plus 3 7, 7 is not going. No, this is the final answer. So the last question we are going to solve by that only. 2 multiplied by 11 plus 3 upon 11 plus 1 multiplied by 77 plus 3 upon 77. Now cross multiply. 2 11s are 22, 22 plus 3 25, 25 upon 11 plus 77 ones are 77, 77 plus 3 is 80 upon 77. Now cross multiply. 25 multiplied by 77 plus 80 multiplied by 11 upon 11 77s are. So here again we are going to multiply like this. 7, 7 and 2, 5. Okay, I can directly solve it. For you people I am doing it like this. 7 5 is 35, carry 3, 7 2 is 14, 14 plus 3 17. The same number is going to repeat, so I'll write shortcut way, directly add written. 5, 7 5 12, carry 1, 1 plus 1 2, 2 plus 7 is 9, carrying is nothing. So I got 25 into 77 as 1925 plus, again what we are going to multiply directly. 11 8s are 88 and 1 0 I will put. 11 8s are 88 and 1 0 I had put upon 11 ka table you people can do. 11 7s are 77, directly I am writing, and 11 7s are 77, carry 7 was before, so 11 7s are 77 plus 7 is 84. Correct? So we will add these two numbers, 5 plus 2. Let me add it for you people. It was 1925 880. We are adding this 5, 10, carry 1, 1 plus 9 is 10, 10 plus 8 is 18, carry 1. This is the answer. So we are going to get 2805 upon 847. So this is the final answer, students. Let me cross check with our textbooks so that I can understand whether we people have done it clearly or not. Let me check it. This is practice set 22. Practice set 22. First answer is 77 upon 52, correct. 67 upon 15 is second answer, correct. Third answer is 430 upon 323, that is correct. And last answer is 255 upon 77. So it is getting cut. It is getting cut, students. We need to reduce the smallest form, simplest form. Let me check how to do it. So if we can cut this number by 11, let's cut it by 11. 11 7s are 77, 11 7s are 77, remaining is 7, 11 7s are 77. Here also 11 2s are 22, remaining is 6, 6 carrying forward, it is getting 60. 11 5s are 55, remaining is 5, 60 minus 55 is 5 remaining, so 5 is carrying forward and 11 5s are 55. So the final answer what we are getting behind is 255 upon 77. I hope you people have understood this question, how to solve it. Please take the screenshot. Okay students, let's see the question number 2. Question number 2's all questions I had written. Before we were adding, now we are going to subtract. Now अब हम लोग subtraction देखेंगे, इसका कैसे करते हैं वो देखते हैं.
सो 7/11 एंड 3/7 कट नहीं हो रहा है, सो वी आर गोइंग टू मल्टीप्लाई, हम मल्टीप्लाई कर देंगे। 7 7 जा -3 मल्टीप्लाई बाय 11, क्रॉस मल्टीप्लाई से हम बोलते हैं, और अपॉन एलसीएम दोनों का लेना है, इसके लिए हम आपस में मल्टीप्लाई भी करते हैं इसे, ठीक है। तो 7 7 जा 49 -11 3 जा 33 अपॉन 11 7 जा 77। 49 minus 33, 49 minus 33 is nothing but 9 minus 3 is 6 and 4 minus 3 is 1 upon 77। अब इससे छोटा नहीं हो सकता स्टूडेंट्स, इसके लिए हम लोग इस पे आंसर छोड़ देंगे। दिस इज आवर फाइनल आंसर। ओके, लेट्स सी हियर, यहाँ पर देखो ये छोटा हो सकता है, एडिशन में हमने किया था वैसे इसमें भी हम कर सकते हैं, इसे छोटा कर सकते हैं। तो छोटा करना चाहे तो छोटा करो, अगर नहीं चाहोगे तो भी हो जाएगा आंसर। तो यहाँ पर 2 1 जा 2, 20 जा, ऐसे भी हो सकता था, और डायरेक्ट आंसर करेंगे तभी भी हो सकता था स्टूडेंट्स, ऐसे कोई बात नहीं। तो हमने चेंज किया ताकि छोटा हो जाए, मल्टीप्लिकेशन इजी तरीके से हमारे पास आ जाए, इसके लिए मैंने छोटा कर दिया। लेट्स सी, अब यहाँ का दोनों का एलसीएम सेम नहीं है, इसके लिए यहाँ पर जाएगा, दोनों का डिनोमिनेटर सेम नहीं, इसके लिए हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। 13 मल्टीप्लाई बाय 2 0 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 36 अपॉन 36 मल्टीप्लाई बाय 20, ताकि एलसीएम सेम हो जाए स्टूडेंट्स। डिनोमिनेटर अगर सेम रहेगा तो हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं होती है। हम क्रॉस मल्टीप्लाई कब करते हैं, जब हमें डिनोमिनेटर सेम नहीं मिलता। जब डिनोमिनेटर सेम है तो हमें डायरेक्ट कर देना है, उसे सॉल्व नहीं करने की जरूरत पड़ेगी, हमें डिनोमिनेटर कट कर देना है और न्यूमरेटर को सॉल्व कर देना है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर मैं मान लेता हूँ 7/5 माइनस 6/5, तो इसका डिनोमिनेटर देखिए सेम है ना। अगर डिनोमिनेटर सेम है तो हमें क्या करना चाहिए, उसका डिनोमिनेटर एक ही बार लिखना है, उसे साइड में कर देना है और ये दोनों सॉल्व कर देना है। ये आंसर आ गया डायरेक्ट। आपके पास डिनोमिनेटर सेम है तो डायरेक्ट आंसर आ जाता है, अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ता है हमें, ठीक है स्टूडेंट्स। लेट्स सी, तो ये मैं मिटा देता हूँ, आगे हम सम सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखते हैं 13 2 जा 26 और एक 0 था आगे, वो 0 लगा दिया, माइनस 36 1 जा 36 अपॉन 36 2 जा 72 और एक 0 आगे लगा दिया। अगर आपको स्टूडेंट्स नहीं समझ रहा है तो आप यहाँ पर मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। 36 मल्टीप्लाई बाय 20, आंसर वही आएगा, देखो 0 मल्टीप्लाई बाय 6 इज 0, 0 मल्टीप्लाई बाय 3 इज 0, 2 मल्टीप्लाई बाय 6 इज 12, कैरी 1, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 इज 6 1 7। आंसर देखो स्टूडेंट्स, आंसर इज द सेम। मैंने क्या किया, 36 का टेबल 2 टाइम्स पढ़ा, इसके लिए मैंने डायरेक्टली कर दिया। आप लोग ऐसे भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब 260 माइनस 36 करना है, 260 माइनस 36 मैं बगल में कर लेता हूँ, फिर हम मिटा लेंगे। 260 माइनस 36 तो कितना हो जाएगा, ये 0 में से तो जाएगा नहीं, तो ये हो जाएगा 10, ये हो गया एक नंबर कम। 10 माइनस 6 इज 4, सब्सट्रैक्ट नहीं हो रहा था इसके लिए हमने ऐसे कर दिया। 5 माइनस 3 इज 2 एंड 2 माइनस नथिंग इज, तो ये आंसर आ गया हमारे पास 224 अपॉन 720। अब स्टूडेंट्स ये लास्ट का यूनिट प्लेस आप देख सकते हो 4 और 0 है, ये 2 के टेबल में कटता है, 2 के टेबल में 0 और 4 दोनों कटता है, तो इसे हम और छोटा कर सकते हैं, रिड्यूस करते हैं इसे हम। रिड्यूस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 का टेबल पढ़ना पड़ेगा। 2 का टेबल में 2 कब आता है, 1 टाइम्स में आता है। 2 का टेबल में 2 कब आता है, 1 टाइम्स में आता है। 2 के टेबल में 4 कब आता है, 2 टाइम्स में आता है। ठीक है स्टूडेंट्स, ऐसे हम कर सकते हैं। फिर अपॉन में 2 के टेबल में 7 नहीं आता, उससे छोटा क्या आता है, 6 आता है। कितने टाइम्स में आता है, 3 टाइम्स में आता है। कितना बच गया, 7 में से 6 गया तो 1 बच गया। 1 और 2 कितना हो गया, 12। 12 कितने टाइम में आता है 2 के टेबल में, 6 टाइम में आता है। ये 12 पूरा खत्म हो गया। फिर 0 कितने टाइम में आता है 2 के टेबल में, 0 में आता है। तो हमारे पास आंसर क्या बच के आया अभी, 1 1 2 अपॉन 3 6 0। फिर से लास्ट में 2 यूनिट प्लेस पे और यूनिट प्लेस पे 0 दिख रहा है मुझे, तो हम फिर से इसे 2 के टेबल में कट कर सकते हैं स्टूडेंट्स। लेट्स सी, कट करने के लिए फिर से मैं कट कर रहा हूँ 2 के टेबल में। 2 के टेबल में 11 आता है क्या, 1 तो छोटा है, 1 और 1 एक साथ ले लिया 11। 2 के टेबल में 11 आता है क्या, नहीं आता। उससे छोटा क्या आता है, 10 आता है। कितने टाइम में आता है, 5 में आता है। तो 11 में से 10 गया तो कितना बच गया, 1 और 2 कितना हो गया, 12 कितने टाइम में आता है, 6 में आता है। तो 56 हो गया। इसको और कट कर सकते हैं। 2 के टेबल में 3 आता है क्या, नहीं आता है। उससे छोटा क्या आता है, 2 आता है। कितने टाइम में आता है, 1 में आता है। 3 में से 2 गया तो कितना बच गया, 1 और 6 कितना हो गया, 16 2 के टेबल में आता है क्या, आता है। कितने टाइम में आता है,
8 में आता है, और 0 आता है 2 के टेबल में, हाँ आता है 2 के टेबल में 0 भी आता है, तो हमारे पास ये नंबर आया। अब इससे और छोटा हो सकता है क्या स्टूडेंट्स? हाँ हो सकता है। फिर से लास्ट में 6 दिख रहा है और 0 दिख रहा है, तो इधर ही मैं कट कर देता हूँ, इसके नीचे नहीं लिख के मैं यहीं कट कर देता हूँ, व्हाइट चॉक से करता हूँ ताकि आप समझ पाएं। 2 के टेबल में इसे कट करने की कोशिश करते हैं, 2 2 2 जा 4, 5 में से 4 चला गया तो कितना बच गया 1। 2 के टेबल में 1 और 6 16 आता है क्या? आता है। कितने टाइम में आता है? 8 में आता है। और उसी तरीके से 2 के टेबल में 18, 1 तो छोटा है, 0 जा लिखने का कोई मतलब नहीं है, ऐसे 0 लिखूंगा तो कोई फायदा नहीं, स्टार्टिंग के नंबर को 0 नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। तो 18 कब आता है? 9 में आता है, और लास्ट में 0 कब आता है? 0 में आता है। तो हमारे पास ऐसे नंबर कट होते चले जा रहे हैं स्टूडेंट्स। नंबर कट होते होते हमारे पास जो लास्ट फाइनल आंसर बचेगा वही हमारा आंसर है। तो मैं 2 के टेबल में कट कर रहा हूँ छोटा, चाहे तो हम बड़े नंबर से भी डायरेक्टली कट कर सकते हैं। मैं आप लोगों को समझाने के लिए छोटे नंबर में कट कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को आसानी से आ सके। फिर से मैं येलो चॉक से करता हूँ ताकि फिर से आपको समझ में आए। यूनिट प्लेस 0 है और यूनिट प्लेस 8 है, तो 2 के टेबल में फिर से आएगा। 2 के टेबल में कितने टाइम में आएगा ये? 2 1 जा 2 आता है, और 2 टाइम में 4, 4 जा 8 आता है। उसी तरीके से 9 2 के टेबल में कब आएगा? कब आएगा बोलो? 4 जा में आएगा। 2 4 जा 8 और 1 बच गया, फिर 2 5 जा 10। अब इससे छोटा हो सकता है क्या स्टूडेंट्स? नहीं हो सकता, क्योंकि यूनिट प्लेस पे आप देख रहे हो 4 और 5, 4 और 5 2 के टेबल में भी नहीं आता, 3 के टेबल में भी नहीं आएगा, 5 के टेबल में भी नहीं आएगा, और किसी के टेबल में नहीं आएगा। तो हम क्या करेंगे? ये फाइनल आंसर समझ के इसे लिख देंगे। फाइनल आंसर क्या आ गया मेरा? 14/45। दिस इज आवर फाइनल आंसर स्टूडेंट्स। अभी आपको समझ में आया ही होगा हम कैसे इसको डिवाइड कर रहे हैं। डिवाइड करना, छोटे फॉर्म में ले जाना वो बहुत जरूरी है। जब तक नहीं आएगा आपको तब तक आप नहीं समझ पाएंगे कैसे करना है। ओके सो स्टूडेंट्स, ये वाला भी हम सॉल्व करते हैं। ये मैं मिटा लेता हूँ थोड़ा सा। ओके, इसके आगे कैसे करना है? फिर से जो हमने फर्स्ट टर्म में एडिशन में देखा था वैसे ही करना है। 1 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 2/3 माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 6 प्लस 5/6। फिर क्या करना है? 3 1 जा 3 प्लस 2 5/3 माइनस 3 6 जा 18, 18 प्लस 5 इज 23/6। ये हमारा क्वेश्चन आ गया स्टूडेंट्स। अब मैं चाहूं तो एक और तरीके से आपको सिखाऊं जो हमने पीछे किया था उस मेथड को देखते हुए। अगर चाहे ये वाला मेथड तो ये भी कर सकते हैं, इसे हम एलसीएम बोलते हैं। अब देखो स्टूडेंट्स, मुझे इसका डिनोमिनेटर 6 बनाना है। अगर मैं इसका डिनोमिनेटर 6 बनाना चाहूं तो मैं क्या मल्टीप्लाई करूं? यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 6 बन जाएगा। अगर मैंने डिनोमिनेटर में 2 से मल्टीप्लाई किया तो ऐसे ही न्यूमरेटर में भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ताकि हमने जो मैनिपुलेशन किया है वो मैनिपुलेशन क्या हो जाए? बराबर रह जाए। इसके लिए तो 2 5 जा कितना हो गया आंसर? 10, और डिनोमिनेटर में कितना हो गया? 6 माइनस 23/6। अब देखो डिनोमिनेटर स्टूडेंट सेम है, डिनोमिनेटर क्या है? सेम है। अगर डिनोमिनेटर सेम है तो हमें क्या करना चाहिए? उसको एक ही बार लिखना चाहिए, तो उसे हम एक ही बार लिखेंगे 6, और ऊपर क्या बचा मेरे पास? 10 माइनस 23। इसे हम बोलते हैं एलसीएम मेथड। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे? माइनस करेंगे। तो 23 तो बड़ा नंबर है और 10 छोटा नंबर है, तो माइनस कैसे होगा? तो 23 में से 10 माइनस करेंगे तो कितना बचता है स्टूडेंट्स? 23 में से माइनस करेंगे तो 13 बचता है, और अपॉन 6 छोटा नंबर। अब यहाँ पर बड़ा नंबर 23 है, इसके लिए उसका साइन लगेगा। तो हमें आंसर कितना आ जाएगा? -13/6। ये हमारा आंसर आएगा स्टूडेंट्स। हमारे पास माइनस में भी आंसर्स आ सकते हैं क्योंकि हम सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं। जो बड़ा नंबर रहेगा उसे हम सॉल्व कर सकते हैं। ये मेथड आप एडिशन में भी इस्तेमाल कर सकते हो स्टूडेंट्स। अगर डिनोमिनेटर आप सेम बना लेते हो तो आपका सम्स छोटा हो जाता है। अगर आप डिनोमिनेटर नहीं सेम बनाते हो, क्रॉस मल्टीप्लाई करना चाहते हो, तो भी आंसर आपका सेम ही आएगा। करके देखना आप लोग, आंसर वही आएगा। अच्छा, अभी यहाँ पर करते हैं हम लोग 4 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 1/2 माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 1/3। देखो 4 2 जा 8, 8 प्लस 1 9, 9/2 माइनस 3 3 जा 9, 9 प्लस 1 10, 10/3। अब स्टूडेंट्स, इसका अगर मैं एलसीएम लेना चाहूं तो इसमें मेरे को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 6 बनेगा, 2 3 जा 6, और इसमें 2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 2 जा 6। ऐसे भी चाहे तो आंसर आएगा, और क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो भी आंसर आएगा। अभी मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके दिखाता हूं ताकि आप लोग ये दोनों कंपैरिजन करके बाद में आप सॉल्व कर सको। देखो स्टूडेंट्स, क्या मिल जाएगा मुझे? 9 मल्टीप्लाई बाय 3 अपॉन पूरे के नीचे ले लेते हैं, और माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 10, और 2 3 जा 6। देखिए मैंने जो 6 बनाया ये आपस में मल्टीप्लाई करने के बाद ही 6 बन रहा है।
क्रॉस मल्टीप्लाई करो चाहे एलसीएम निकालो, एक ही मतलब बनता है उसका। 9 मल्टीप्लाई बाय 3 इज 27 माइनस 10 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 20 अपॉन 6। 27 माइनस 20 इज 7 एंड अपॉन 6। देखो स्टूडेंट्स, यही आंसर आया हमें। अब मैं इसको, यही सम्स को मैं यहां से सॉल्व करता हूं एलसीएम लेके, ताकि आप लोग समझ सको। एलसीएम लेके भी कर देता हूं मैं। इसका एलसीएम देखिए, इसमें मैं क्या मल्टीप्लाई करने वाला था, ये नंबर मैं लिख देता हूं 9 अपॉन 2 माइनस 10 अपॉन 3। देखिए स्टूडेंट्स, मैं इसमें क्या मल्टीप्लाई करने वाला हूं 3, इसमें भी 3 मल्टीप्लाई करेंगे, ताकि मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जो हम यूज कर रहे हैं वो सेम रहे। उसी तरीके से यहाँ पर मैं क्या मल्टीप्लाई करूंगा 2, तो ऊपर भी 2 मल्टीप्लाई करूंगा। अब आंसर क्या बनते हुए आ रहा है मेरे पास, वो देखिए 9 3 27 अपॉन 6 माइनस 10 2 20 अपॉन 6। डिनोमिनेटर सेम बन गया, उसको एक ही बार लिखेंगे हम लोग। और 27 और 20 ऊपर है न्यूमरेटर में, उसे हम सॉल्व कर लेंगे। तो क्या हो जाएगा, वो सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 7 अपॉन 6, जो आपको फाइनल आंसर इसके पहले वाले में भी मिला था। इसके पहले भी सेम ही आंसर मिला था आपको। तो ये मैंने आपको समझाने के लिए सिर्फ एलसीएम मेथड किया है। आप चाहें तो ये वाला यूज करिए, चाहे ये वाला यूज करिए। यू कैन यूज बोथ इन योर एग्जाम। ओके, बोथ आर द करेक्ट। प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट। स्टूडेंट्स, लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन 3 में हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है सारा नंबर्स। सो वी विल मल्टीप्लाई न्यूमरेटर इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इन डिनोमिनेटर। मल्टीप्लाई साइन हमेशा क्या बोलता है, न्यूमरेटर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करो, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करो। और अगर सेम नंबर मिलते हैं तो उसे कट भी कर सकते हैं। लेट्स सी कैसे करना है। 3 2 सो 3 मल्टीप्लाई बाय 2 अपॉन 11 मल्टीप्लाई बाय 5। क्या आ जाएगा आंसर, 3 2 6 अपॉन 11 मल्टीप्लाई बाय 5 इज 55। सो ये हमारा फाइनल आंसर। इससे और ज़्यादा कट हो सकता है क्या, नहीं कट सकता। यहाँ पर लेट्स सी, ये देखो ये दोनों नंबर कट रहा है स्टूडेंट्स, 3 के टेबल में कट रहा है। अगर हम चाहें तो इसे छोटा भी कर सकते हैं और सेम आंसर भी ला सकते हैं। वी कैन रिड्यूस टू इट सिंपलेस्ट फॉर्म। देखो मैं रिड्यूस करके भी आंसर लाता हूँ आपके लिए। 3 5 और 3 4 ये दोनों जो नंबर है ना कट रहे हैं, वो सेम टेबल में कटने चाहिए, तभी हम उसे कट कर सकते हैं, और एल्स नहीं कट कर सकते हैं। अभी देखो हमारे पास फाइनल आंसर क्या बचेगा, 4 अपॉन 5 मल्टीप्लाई बाय 4 अपॉन 5। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर मेरे पास जो बच के आया है वैल्यू, इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो क्या बचेगा, 4 4 16। डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हैं हम, 4 मल्टीप्लाई बाय 4 अपॉन 5 मल्टीप्लाई बाय 5 एंड इट विल गिव यू 16 अपॉन 25। ओके स्टूडेंट्स, अब इसको मैं डायरेक्टली सॉल्व करता हूँ। जो क्वेश्चन था एग्जैक्ट, वो क्वेश्चन के हिसाब से मैं सॉल्व करता हूँ। क्वेश्चन था हमारे पास 5 मल्टीप्लाई बाय 4 अपॉन 15। देखिए स्टूडेंट्स, इसको अगर हम आपस में सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा आंसर, 12 मल्टीप्लाई बाय 4 एंड 5 मल्टीप्लाई बाय 15। आंसर वही आ रहा है क्या, वो चेक करते हैं। 4 12 12 4 48 अपॉन 15 5 75। अब देखो स्टूडेंट्स, ये दोनों नंबर ना 3 के टेबल में कट होता है। 3 के टेबल में कैसे कट हो रहा है वो देखते हैं हम लोग। 3 के टेबल में 7 कब आता है, 2 टाइम्स में आता है, उससे छोटा आना चाहिए। वो नहीं आता तो उससे छोटा आना चाहिए। तो 1 आगे पास हो गया। 1 और 5 15 होता है, तो 3 5 15। करेक्ट। अब ये मैं 3 के टेबल में कट कर रहा हूँ, तो ये भी 3 के टेबल में ही कट कर रहा है। 3 के टेबल में 3 1 3, 4 से छोटा था 3, 1 बच गया, 4 माइनस 3 इज 1, सो 18 हो गया। 18 कैसे जाता है, 3 के टेबल में 6 तो आंसर कितना आ गया, 16 अपॉन 25। यही आंसर आया। और अगर स्टूडेंट्स ये नहीं समझ में आता है आपको ऐसे कैसे आया, तो आप क्या कर सकते हैं, ये वाला जो नंबर है देखिए मैं यहाँ पर करता हूँ 48 अपॉन 75। अब ये नंबर हमें क्या करना है, सेम टेबल में, जैसे अगर मैंने 3 के टेबल में पढ़ा है तो 3 के टेबल में कितने टाइम में पढ़ा था, 16 3 और 3 के टेबल में ही 75 कब पढ़ा था मैंने, तो ऐसे लिख देता हूँ 3 25 तो ये 3 और 3 कट गया, क्या बचा 16 अपॉन 25। आंसर ऐसे ही आता है 16 3 48, 25 3 75। अगर आपको टेबल्स डायरेक्ट समझ में आते हैं तो आप ऐसे भी कर सकते हो। आंसर लाना है आपको, मैथमेटिक्स इज रियली इजी। ओके, लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 4। देखो यहाँ पर डायरेक्टली कट हो रहा है तो कट कर सकते हो आप लोग, जैसे अभी मैंने आपको सिखाया। डायरेक्टली कट कर दोगे तो आपको छोटा हो जाएगा वैल्यूज, और जब छोटा वैल्यूज मिलेगा तो आपके लिए बेनिफिट हो जाएगी। लेट्स सी, मैं इसे कट करता हूँ। 3 1 3,
3 के टेबल में 9 3 टाइम्स में आता है। उसी तरीके से 4 1 जा 4, 4 के टेबल में 8 कब आता है? 2 टाइम्स में आता है। तो मुझे आंसर क्या बच के मिलेगा? मुझे आंसर बचेगा -2/3 मल्टीप्लाई बाय 1/1। 2 से मल्टीप्लाई होगा 1, तो क्या आएगा आंसर? -2 ही आएगा, और 3 से 1 मल्टीप्लाई होगा तो 3 ही आएगा। आंसर खत्म हो गया। अगर हम बड़ा करके फिर छोटा करते हैं तो भी प्रॉब्लम आपके ही लिए है। इससे पहले हम डिवाइड कर सकते हैं तो डिवाइड कर लो। डिवाइड करेंगे पहले तो आपको आंसर छोटे ही आएंगे, क्योंकि हमारा मैथमेटिक्स क्या बोलता है? बॉडमास रूल, जो कि आप 8th स्टैंडर्ड में सीखोगे, बॉडमास रूल। ठीक है, तो अभी हम लोग आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर हमने सिंप्लीफाई करके देख लिया छोटे आंसर्स में। उसी तरीके से यहाँ पर क्या बता रहा है? 0 मल्टीप्लाई बाय 3। अगर मैं डायरेक्टली 0 मल्टीप्लाई बाय 3 करता हूँ तो 0 ही आने वाला है, और 6 मल्टीप्लाई बाय 4 करूंगा तो 24 आने वाला है। तो न्यूमरेटर अगर 0 और डिनोमिनेटर कुछ भी आता हो तो हम आंसर क्या लिखते हैं? फाइनल 0 ही लिखते हैं। न्यूमरेटर में जो भी आंसर मिल जाए मुझे 0, तो अगर न्यूमरेटर में 0 है तो उसका मतलब 0 ही आंसर है आपका। डिनोमिनेटर में चाहे कुछ भी नंबर लिख दे, वो आपके लिए काम का नहीं है। यहाँ तक समझ में आया स्टूडेंट्स? प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट। Okay students, let's see question number 4. Question number 4 says multiplicative inverse. We need to find the multiplicative inverse of the questions written on the board. Let's see कैसे करते हैं अभी हम लोग। Multiplicative inverse में क्या होता है? जब भी हम जो नंबर दिया हुआ है उसको सेम उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करें तो 1 आना चाहिए आंसर। तो ये हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है, वो क्वेश्चन को हम लोग चेक करते हैं क्या है। तो डायरेक्टली लिखते हैं द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इज, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है तो डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में आ जाएगा और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, रेसिप्रोकल हो जाएगा। इसे ऐसे भी लिख सकते हो और ऐसे भी लिख सकते हो स्टूडेंट्स, रेसिप्रोकल, उसका मतलब वही होता है रेसिप्रोकल। इसका रेसिप्रोकल क्या है? 5/2। आप डायरेक्टली लिख सकते हो, ऐसे भी आप आंसर लिख सकते हो। तो मैं यहाँ पर डायरेक्टली आपको आंसर लिख रहा हूँ, आप ये स्टेटमेंट लिख लीजिएगा। ओके, तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ डायरेक्टली ये वाला रेसिप्रोकल, देयरफॉर रेसिप्रोकल इज इक्वल्स टू माइनस, वैसे ही रहेगा 5/3। ये माइनस चाहे आप बीच में लिखो चाहे न्यूमरेटर में, कभी डिनोमिनेटर में माइनस नहीं दिखाना होता है। इसके लिए हम न्यूमरेटर माइनस जो भी दिया जाता है माइनस न्यूमरेटर में ही दिखाते हैं। यहाँ पर भी वैसे ही आएगा, देयरफॉर रेसिप्रोकल इज इक्वल्स टू -39/17। अब स्टूडेंट यहाँ पर देखिए डिनोमिनेटर में कुछ नहीं दिया, डिनोमिनेटर में कुछ नहीं दिया, इसका मतलब क्वेश्चन नंबर 1 में डिनोमिनेटर में 1 है। ओके, तो इसे हम वापस से इसी तरीके से आपको समझना है। रेसिप्रोकल आप खुद लिखोगे, मैं नहीं लिख रहा हूँ। यहाँ पर इसको कैसे लिखेंगे? 1/7। 1/7 इसका आंसर आएगा। आपको लिखना है रेसिप्रोकल या तो फिर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। द लास्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में भी क्या बताया है? क्रॉस मल्टीप्लाई करना है और सॉल्व करना है। पहले डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर मिक्स फ्रैक्शन को खत्म करना है नॉर्मल फ्रैक्शन में। तो कैसे आएगा? -7 मल्टीप्लाई बाय 3 + 1/3 क्या मिल जाएगा? -21 + 1/3। माइनस और प्लस क्या होता है स्टूडेंट्स? माइनस होता है। तो 21 - 1 कितना हो गया? 20। बड़ा नंबर कौन है? 21, इसके लिए उसकी साइन माइनस होगी /3। अब इसका रेसिप्रोकल निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? देयरफॉर रेसिप्रोकल इज इक्वल्स टू -3/20। ये आपका आंसर है स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ में आ रहा होगा स्टूडेंट्स। ये क्वेश्चंस बहुत इजी था, इसके लिए मैंने थोड़ा जल्दी जल्दी कर दिया, आपको समझ में आया ही होगा। टेक द स्क्रीनशॉट। ओके स्टूडेंट्स, लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया है? आपको डिवाइड करना है क्वेश्चन में 2 फ्रैक्शन को डिवाइड करना है। तो डिवाइड करने के लिए हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का भी सहारा ले सकते हैं और डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का सहारा लेके सॉल्व करता हूँ। देखो, इसको छोटा भी कर सकते हैं स्टूडेंट्स, इसको भी छोटा कर सकते हैं हम। छोटा करके भी वैल्यू लाओगे तो भी आंसर आपको सेम ही आएगा। यू विल गेट द सेम आंसर इफ यू विल रिड्यूस इट। ओके, लेट्स सी हाउ टू डू इट। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट द फर्स्ट फ्रैक्शन एज इट इज। We will change this multiplication sign, this division into multiplication, and whenever we are going to replace this divide sign with multiply, जब भी हम divide sign को multiply से change करेंगे तो denominator numerator में चला जाता है और numerator denominator में आ जाता है।
समझ रहे हो स्टूडेंट, ये ऊपर हो जाता है और ऊपर वाला नीचे आ जाता है ऐसे। देखो मैंने चेंज किया, दिख रहा है आपको? ओके, सो अब जो कट हो सकता है उसे कट कर देंगे। ये 0 से 0 कट हो रहा है, देखो 10 1 जा 10 मींस 10 1 जा 10, और ये 0 से 0 कट करता तो भी वही आंसर आता, और 4 1 जा 4। ठीक है, और ये 12 4 के टेबल में आता है, इसके लिए 4 1 जा 4, 4 3 जा 12। तो हमारे पास बचा हुआ आंसर क्या है? 4/3 पहले फ्रैक्शन में, और सेकंड फ्रैक्शन में 1/1। तो ये जब भी हम मल्टीप्लाई करेंगे सेम नंबर तो हमारे पास सेम ही आएगा। पिछले में हमने देखा था, वी हैव सीन इन द प्रीवियस क्वेश्चन मल्टीप्लाई कैसे करना है। सामने सामने मल्टीप्लाई हो जाता है, न्यूमरेटर न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई होता है, और डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पर भी हम ऐसे ही सॉल्व करेंगे। वी विल गेट -10/11, वी विल चेंज मल्टीप्लाई साइन, 10 will go up and 11 will come down, बस माइनस साइन है, माइनस हम यहाँ रख देंगे। सो वी नो वेरी वेल माइनस इंटू माइनस क्या होता है? प्लस। सो इसके लिए माइनस माइनस प्लस बन के 10 10 सा कितना हो जाएगा? 100, और 11 11 सा होता है स्टूडेंट्स 121, 11 11 सा 121। तो ये आपका आंसर है, इससे आगे सॉल्व नहीं हो सकता। स्टूडेंट इसको कट करने की कोशिश मत करना, न्यूमरेटर सेम दिख रहा है, पर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के साथ ही कट होता है, न्यूमरेटर के साथ नहीं कट होता है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास क्या दिया है? -7/8, फिर मल्टीप्लाई साइन -6/3। देखिए ये साइन चेंज किया हमने, वी हैव चेंज दिस साइन इनटू मल्टीप्लिकेशन साइन एंड देन वी आर गोइंग टू सॉल्व इट। हम इसके बाद सॉल्व कर रहे हैं। तो ये 2 के टेबल में दोनों कट होता है, तो इसे 2 के टेबल में हम कट कर सकते हैं। तो कट करते हैं, क्या हो जाएगा मेरे पास? 2 3 जा और 2 4 जा, करेक्ट। हमारे पास क्या बच के आ गया स्टूडेंट्स? -7/4 मल्टीप्लाई बाय -3/3, ये बच गया है। इसको इसके साथ कट कर सकते हैं स्टूडेंट्स, तो इसको इसके साथ कट करेंगे तो क्या आ जाएगा? 3 1 जा 3, 3 1 जा 3। आंसर हमारे पास क्या बच के आएगा? -7/4, क्योंकि -7 1 से मल्टीप्लाई होगा, सॉरी यहाँ पे माइनस भी है, इधर मैं लिख के दिखा देता हूँ, -1/1। तो ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा? प्लस, और अपॉन 4 1 जा 4। ये आंसर आपके पास आएगा स्टूडेंट्स, माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, और 4 1 जा 4 आ गया। स्टूडेंट्स बैकग्राउंड नॉइज को थोड़ा सा माफ करना, क्योंकि यहाँ पर ट्रैफिक बहुत ज्यादा होती है, इसके लिए लगातार हॉकिंग की आवाज आ रही है। पूरे वीडियोस में आपको ये हॉकिंग की आवाज सुनाई देगी, क्योंकि बाहर मार्केट लगा होता है, संडे मार्केट। ओके, लेट्स सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 2/3 मल्टीप्लाई बाय -1/4। इसके नीचे क्या है हमारे पास स्टूडेंट? 1 है। जब मल्टीप्लाई साइन करते हैं तो रेसिप्रोकल हो जाता है, और रेसिप्रोकल हो जाता है तो हमें उसको क्या कैसे करना है सॉल्व करने के लिए हमने बताया आपको। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। तो हमारे पास क्या बच के आ रहा है स्टूडेंट्स? हमारे पास बच रहा है 1/3 मल्टीप्लाई बाय -1/2। तो आंसर क्या आएगा? -1 एंड 3 2 जा 6। सो स्टूडेंट्स इस तरीके से हमने 4 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। 4 क्वेश्चंस और मैं सॉल्व करूंगा, आप ये 4 क्वेश्चन के स्क्रीनशॉट लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 6 7 8। लेट्स चेक क्या करना है हमें। वी हैव टू सॉल्व लाइक दिस ओनली। 2 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 1/5 डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 6 प्लस 3/6। 2 5 जा 10 प्लस 1 11/5 डिवाइडेड बाय 5 6 जा 30, 30 प्लस 3 इज 33/6। मल्टीप्लाई साइन लाना है हमें डिवाइड हटा के, सो क्या होगा? 6 ऊपर चला जाएगा, 33 नीचे आ जाएगा। तो 11 के टेबल में देखो 11 1 जा 11, 11 3 जा 33 कट होता है। सो हमारे पास आ गया आंसर 1/5 मल्टीप्लाई बाय 6/3 कट हो रहा है ये दोनों भी, इसके लिए कट कर देंगे। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। सो फाइनल आंसर क्या बच के आ रहा है? 1 मल्टीप्लाई बाय 2/5 मल्टीप्लाई बाय 1। तो 1 2 जा 2 आता है और 5 1 जा 5। सो दिस इज आवर आंसर। सबको समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, मैं उम्मीद कर रहा हूँ। ये इजी क्वेश्चन है,
जल्दी से समझ जाता है। इसे भी हम सॉल्व कर देते हैं, -5/13 ऐसे ही लिख देते हैं, चेंज कर देते हैं इसको 26/7। 13 के टेबल में 26 आता है, 13 1 जा 13, 13 2 जा 26। सो आंसर हमें डायरेक्टली में करेंगे तो भी चलेगा स्टूडेंट्स, 5 2 जा 10, इसके लिए मैं लिख दे रहा हूँ -10, माइनस प्लस माइनस और अपॉन 1 7 जा 7। देखो मैंने स्टूडेंट स्टेप्स छुपा लिया, स्टेप्स हम छुपा भी सकते हैं जल्दी खत्म करने के लिए। आंसर आपका राइट है वो भी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, 9/11 मल्टीप्लाई बाय, इसके नीचे 1 है तो क्या हो जाएगा ये 1/8। सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा आंसर, -9/88। 9 1 जा 9, 11 8 जा 88। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 8th क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला है, 5/1 है, इसके नीचे क्या है 1, इधर चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा 5/2। और आंसर हम लोग क्या लिखेंगे, 5 5 जा 25 और 2 1 जा 2। सो ये आंसर है आपका फाइनल आंसर। स्टूडेंट्स इसी तरीके से हमने ये एक्सरसाइज खत्म कर दिया है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये एक्सरसाइज आसानी से समझ में आई होगी और आप लोग अच्छे से सीख रहे होंगे मैथ्स। ठीक है, सो अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे। थैंक यू। Okay students, if you like my teaching style, the way I teach, so please subscribe to my channel for more videos and please like my video and share it to your friends so that they can even learn the easy way of mathematics. Thank you so much.